نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے منسلک خبروں سے پہلے یہ خبر کہ میکسیکو کے فٹ بال کے سب سے بڑے عالمی مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ میکسیکو میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی ہے جس میں شکیرا اور برنابوائے نے شاندار پرفارمنس سے شائقین فٹ بال کو جھومنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شکیرا اور برنابوائے نے ورلڈ کپ کا آفیشیل نغمہ ڈائی ڈائی گایا ہے۔ اس وقت ورلڈ کپ فٹ بال کا افتتاحی میچ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ہے۔ میکسیکو نے جنوبی افریقہ پر 1 گول کی برتری حاصل کر لی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدے کے حتمی نکات طے ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایران کے ساتھ بات چیت کو ایرانی قیادت کی اعلیٰ ترین سطح پر لایا گیا اور وہاں سے اس کی منظوری دی گئی ہے، میں نے امریکی صدر کی حیثیت سے ایران پر آج رات طے کیے شدہ حملے کو منسوخ کر دیا ہے۔ مذاکرات اور حتمی نکات تصورات اور تفصیل کے ساتھ تمام فریقین کی طرف سے منظور کیے گئے ہیں۔ فریقین میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، UAE، قطر، ترکی، پاکستان اور دیگر شامل ہیں۔ بحری ناکہ بندی لین دین کو حتمی شکل دینے تک پوری قوت سے جاری رہے گی۔ معاہدے پر دستخط کے وقت اور جگہ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حتمی نکات منظور ہونے کے دعوے پر ایرانی پاسداران انقلاب فورس نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکام نے ٹرمپ کے دعووں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ٹرمپ نے متعدد بار متضاد اور غلط بیانات دیے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17,500 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ کم تنخواہ والے طبقے کے لیے ٹیکسز کی شرح میں کمی کا امکان ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ اسرائیل کے مطابق مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں سولر پینلز، اسٹیشنری اشیاء اور سٹاک مارکیٹ پر عائد ٹیکسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھائے جانے کا امکان ہے، جبکہ ہائی بریڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس شرح برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو تقریباً 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگائے جانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% شرح مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کرپٹو ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع پر گین ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں سابق قبائلی علاقوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ بچوں کے فارمولا دودھ، گھی، کوکنگ آئل سمیت درجنوں اشیاء خورونوش مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سپر ٹیکس میں 1 سے 2% تک کمی کی تجویز ہے۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبوں سے مرکزی حکومت کو فراہم کردہ فنڈز 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہیں۔ رواں سال GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو یہ 4% سے اوپر جاتی۔ اکنامک سروے جاری کرنے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا صوبوں سے مرکزی حکومت کو فراہم کردہ فنڈز 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہیں۔
रवां साल GDP की शरह नमू 3.7% रही। अगर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो ये 4% से ऊपर जाती और महंगाई की शरह भी कम होती। मईशत का हजम 452 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद महज $252 मिलियन रह गया है। प्राइमरी सरप्लस 3.2% और करंट अकाउंट खसारा मनफी 2.2% रहा। कर्जे GDP के 68.5% के बराबर हैं। इनका कहना था कि फी का सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई है। सीमेंट के शोबे में 10, खाद के शोबे में 17 और पेट्रोलियम सेक्टर के शोबे में 5% ग्रोथ हुई। मुल्क की मईशत में तरसीलात ज़राअत का अहम किरदार रहा। बरामदात में कमी की वजह से चावल और चीनी की बरामदत का $1.5 अरब कम होना है। फ्रीलांसर्स की तरफ से बरामदात $90 करोड़ तक पहुंच गई है। निजी शोबे के लिए कर्जों में 22% इजाफा हुआ जो $935 अरब रहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पॉलिसी रेट ऊपर गया। सनतों के लिए बिजली सस्ती की। पाकिस्तान की $1 अरब की दरामदात मशीनरी की मद में हुई। जुलाई से मई औसतन महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया पाकिस्तान के पास 2.75 माह की दरामदात का अहाता करने के लिए इम्पोर्ट कवर मौजूद है। रवां साल अब तक कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड लिस्टिंग हुई। मुल्क भर में 39,000 से ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। अब मजमूई तादाद 2,97,000 से ऊपर है। वजारतों के इंतजाम और PWD समेत मुतअद्दिद महकमों को बंद करने के लिए राइट साइजिंग शुरू की गई जो जारी है। रवां साल के अहदाफ पूरे न होने पर वज़ीर ख़ज़ाना ने मुख्तलिफ शोबों का हवाला देते हुए कहा ये 4 साल की बुलंदतरीन तरक्की की शरह है। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल हो रहा है जो एजाज की बात है। अशरफ मरखुम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुजफ्फराबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की क़ुरबानियाँ मुल्क के अमन, सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए नाकाबिल फ़रामोश हैं। रियासत हर हाल में शोहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। शोहदा की नमाज जनाजा में शोहदा के अहल खाना और अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इससे कबल 2 शहीद मसीही जवानों की आखिरी रसूमात रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में अदा की गई जिनमें सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा शोहदा की फ़र्ज शनासी, पेशा वाराना महारत और वतन के दिफा के लिए उनका अज़म आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की क़ुरबानियाँ मुल्क के अमन, सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए नाकाबिल फ़रामोश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत हर हाल में शोहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है और उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। शोहदा को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी जबकि गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 3 ओहदों में से 2 मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोalition हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी के हवाले से आपस में डिस्कशंस हुई और जो हमें फीडबैक दिया गया उसके मुताबिक इस्लामाबाद पैटर्न को गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है। पीपल्स पार्टी और मरकजी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान ये तय हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की मदद करेगी और वज़ीर आला के इंतखाब में वोट करेगी और उसके नतीजे में जो पैटर्न तय शुदा है वो आइनी ओहदे जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास रहेंगे और इंतज़ामी ओहदे और हुकूमती ओहदे पीपल्स पार्टी के पास रहेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिनेवा से जद्दा पहुंच गए। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल और नून लीग के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, वो उम्रा भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा करेंगे। मरी एक्सप्रेस वे पर हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम 10 अफराद ख़वातीन और बच्चे थे। उनकी तदफीन मुल्तान में कर दी गई। इन जाँ बहक होने वालों में 5 बहन भाई और उनकी वालिदा और दादी भी शामिल थीं। इमरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे।
पूरी रात न सो गई पप्पा मेरे को ले आगे भाई। गले लगकर रोते हुए नजर आने वाला ये नौजवान काशिफ है, जिसकी कुल कायनात मरी एक्सप्रेस वे में हादसे में उजड़ गई। काशिफ की वालदा, बीवी और 5 बच्चे इस हादसे में जाँ बाक हो गए। मेहनतकश काशिफ ने सारा साल ये सोचकर अपनी महदूद आमदन में से बचत करके रकम इकट्ठी की कि गर्मियों की छुट्टियां आते ही अपने बीवी बच्चों को सैर व तफरीह के लिए मरी भेजेगा, और इसने ऐसा ही किया। लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो अपने बीवी बच्चों को जिस सफ़र पर भेज रहा है वो आखिरी सफ़र साबित होगा। ड्राइवर से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, स्पीड की वजह से गाड़ी में आग लगी है। ड्राइवर उतरा है, उसने फ्रंट सीट पे दो बच्चे थे उनको उतारा है, इतनी देर में आग ज़्यादा हुई है और वो ड्राइवर जो है वो रफू चक्कर हो गया वहाँ से। मरी हादसे में जाँ बक होने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की मैयतें जब उनके आबाई इलाके महल्ला सूतरीवट पहुंची तो इलाके में कोहराम बरपा हो गया। हादसे में जाँ बक अफराद का नमाज जनाजा अलमदार चौक में पढ़ाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जोदत नदीम के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि कश्मीर के लिए लाखों पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 2.25 लाख कश्मीरी महाजरीन ने बॉर्डर क्रॉस करते हुए जानों का नजराना पेश किया। सिर्फ कश्मीरियों का नहीं बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कौमी मसला है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल मुज़ाकरात और जमहूरी अमल में है, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क की तमाम बड़ी सियासी क़यादत ने मुख्तलिफ अदवार में कैदोबंद और सज़ाएँ बर्दाश्त की, जिनमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शामिल हैं। ताहम किसी ने भी निज़ाम पार्लिमान या रियासती इदारों को दाव पर नहीं लगाया। गुज़श्ता 2.25 बरस से तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर सिर्फ एक शख्सियत है, जबकि ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बजाय पार्लिमान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। किसी एक फ़र्द की खातिर कौमी इदारों की तौक़ीर मजरूह नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के मामले पर इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ में मौजूद आज़ाद का लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की रियासत और अवाम की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है और पाकिस्तान कश्मीर के मुक़दमे को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कलअदम एक्शन कमेटी पर दायर मुकदमात से मुताल्लिक़ साबिक़ा रियायतें वापस ले लीं। 177 FIR बहाल करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के माहदे में मामलात अमल दरामद कमेटी के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। सड़कों पर आकर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना माहदे की खिलाफ वर्जी है। माहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले ख़त्म किए गए मुकदमात माहदे के मुताबिक ही दोबारा बहाल कर दिए गए। और मौसम की बात करते हैं। कराची में गर्मी शहरियों का इम्तिहान लेने पर तुल गई है। 40 डिग्री दर्जा हरारत, हवा में नमी के तनासुब के बायस 50 डिग्री महसूस किया गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग और पानी की किल्लत ने मौसम की शिद्दत को और भी नाकाबिले बर्दाश्त बनाए रखा। छोटे घरों और गुंजान आबादियों में रहने वाले सारा दिन पसीने में नहाते और सूरज ढलने का इंतजार करते रहे। कराची शदीद मौसमों का आदी नहीं, इसीलिए गर्मी की हालिया लहर से पूरा शहर बुलाया हुआ है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 था, मगर हवा में नमी के जायद तनासुब ने जलती पर तेल का काम किया और गर्मी असल से 10 गुना ज्यादा यानी 50 डिग्री तक महसूस की गई। दूसरी जानब निजी वेदर स्टेशन का इंकशाफ ज्यादा होलनाक है, जिसके मुताबिक आज कराची के दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक रही। नतीजा ये कि बाहर निकलो तो आग लगाती लू के थपेड़े और घर में रहो तो बर्दाश्त से बाहर हब्स, जबकि बिजली की तवील लोड शेडिंग और पानी की किल्लत ने इस वबाल को भी शदीद बना दिया। बिजली के मुतबादिल इंतजाम और एयर कंडीशनर्स की सहूलतों से महरूम शहरियों की अक्सरियत सारा दिन अपने ही पसीने में नहाती रही। आज जिन्ना टर्मिनल 40.5 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका रहा, जबकि गुलिस्तान जौहर में 40, शाहरा फैसल पर 39, माड़ीपुर में 38 और बिन कासिम में दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल भी शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शहरियों को बताया गया है कि वो बिला जरूरत धूप में ना निकलें और किस्मत से पानी दस्तयाब हो तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
लाहौर के इलाके बाटापुर में पंजाब इंसदाद मनशियात फोर्स ने छापा मारा है। तर्जुमान इंसदाद मनशियात फोर्स के मुताबिक छापा सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के मामू के घर पर मारा गया। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट खुद भी पहुंच गए। सुहेल शौकत भट्ट की एहलकारों से तल्ख कलामी और हाथापाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सुहेल शौकत भट्ट एहलकारों से ये कहते रहे कि तुम्हें मेरे बहन के घर पर आने की जुर्रत कैसे हुई। इस मामले पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन बंद मिला। इस पर मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद। मियाँ आबिद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं मज़ीद। जी, ये लाहौर का एक सरहदी इलाका है बाटापुर। वहाँ पे एक हसीन गांव है जहाँ पे जो सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट के मामू का घर है। वहाँ से इनको जो पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स जो थी, उनको खुफिया इत्तला मिली थी कि वहाँ पे मुंशियात जो है वो स्मगल की जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने जब छापा मारा तो फिर ये इत्तला जो है वो सुहेल शौकत भट्ट तक पहुँच गई। तो वो सूबाई वजीर जो है वो खुद वहाँ पे पहुंचे और उस वक्त जो घर था उसको जो फोर्स थी उसने बंद कर दिया, मेन गेट बंद कर दिया और अंदर वो तलाशी ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गेट खोलो, ये मेरी बहन का घर है। तो उन्होंने जब इनकार किया कि डायरेक्टर आ रहे हैं, आप उनसे बात करें, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, तो उनके हामियों ने पिछुड़े मारे, तलक कलामी हुई, हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए और सूबाई वजीर जो है वहाँ से वो ये कहते हुए चले गए कि मैं आपको देख लूंगा। उसके बाद नारकोटिक फोर्स जो थी वो वहाँ से उन्होंने, उनका कहना ये है कि भारी मिकदार में मंशियात और ड्रोन जो कि बॉर्डर पार मंशियात भेजी जाती थी वो ड्रोन के जरिए भेजी जाती थी, वो ड्रोन भी बरामद किए और असला भी बरामद किया है और 2 अफराद को वहाँ से गिरफ्तार किया है, वकार और शुएब को, जो ये बताए जाते हैं कि ये सूबाई वजीर के मामूजात भाई हैं दोनों। तो आज जो हमारी बात हुई उनसे तो उनका कहना ये था कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ सुहेल शौकत भट्ट से जब हमने राब्ते की कोशिश की तो उनका फोन नंबर मुसलसल बंद मिला। बहुत शुक्रिया मियां आबिद, आपने अपडेट किया। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने सिंध में पानी की कमी पर इल्ज़ाम लगाया है कि इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सिंध को 41% पानी की कमी का सामना है, खुसूसन चावल की काश्त शदीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत पानी का मुकर्ररा हिस्सा नहीं मिल रहा। कल इस मामले पर NEC इजलास में शदीद एहतजाज किया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने इस पर वफाकी हुकूमत को भी ख़त इरसाल किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी ने सिंध में पानी की क़िल्लत पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा है कि सिंध में पानी की क़िल्लत से खड़ी फसलें ख़तरात से दो चार हो रही हैं। सिंध के हिस्से के पानी में कमी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसका नोटिस लें। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से अंजुमन तरक्की उर्दू के मरहूम खाजिन सैयद आबिद रिजवी की याद में ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें मरहूम की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हसीना मोइन हॉल में मुनक़िदा इस ताज़ियती रेफरेंस में इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मोतबर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर सहर अंसारी, आज काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह, डॉक्टर फातिमा हसन और अमीना सैयद का कहना था कि आबिद रिजवी के इंतकाल से इल्म अदब सकाफ़त के शोबे में एक बड़ा खला पैदा हुआ है। इस मौके पर सैयद वासिक़ हसन, खालिद महमूद, सिंधु पीरज़ादा, हमाद ज़ैदी, अवैस अदीब अंसारी, हसन अब्बास और मरहूम के साहबजादे समीर रिजवी ने भी खिताब किया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का बुखार कराची के इलाके लियारी में भी सर चढ़कर बोल रहा है। देखते हैं राबिया वर्षा की रिपोर्ट। जी, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं बहुत डिफरेंट स्टोरी है और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन इसकी बात है वो ये है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को खुश करना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली आज फीफा की चांद रात है जिसको आप कह सकती हैं, मैं उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ, उसके लिए केक्स बना रही हूँ, कप केक्स बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगी उन बच्चों में जिनको फुटबॉल से बहुत प्यार है, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। अगर बात हो फुटबॉल की तो कैसे बात ना हो लियारी की, जो कि हब है टैलेंटेड लोगों का। जी हाँ, अभी हम यहाँ पे लियारी में बस एंटर ही होने वाले हैं और हम एंटर में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सजावट हुई हुई है।